بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ النساء کی آج جو ہے ہم آخری آیتیں دیکھیں گے. انشاءاللہ آج سورۃ النساء جو ہے اللہ کے حکم سے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 170 to 176. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اے انسانو، در حقیقت آ گئے تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، پھر ایمان لے آؤ تم، بہتر ہوگا تمہارے ہی لیے، اور اگر تم انکار کرتے رہو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ہے اللہ علم والا حکمت والا. آیت نمبر 171. یا اہل الکتاب لا تعلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. اے اہل کتاب، نہیں تم مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہیں تم کہو اللہ پر سوائے حق کے. در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور فرمان ہے اس کے جسے ڈال دیا اس نے حضرت مریم کی طرف، اور روح اس کی طرف سے. پھر ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، اور نہ کہو تم کہ 3 معبود ہیں. پاس آ جاؤ ایسا کہنے سے، بہتر ہوگا تمہارے لیے. در حقیقت اللہ تمہارا اکیلا معبود ہے، پاک ہے اللہ کی ذات اس سے کہ ہو اس کی کوئی اولاد. اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز. آیت نمبر 172. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ہرگز نہیں توہین محسوس کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے کہ وہ ہیں اللہ کے بندے، اور نہ ہی مقرب فرشتے. اور جو کوئی توہین محسوس کرے اللہ کی بندگی میں
اور وہ تکبر کرے تو ضرور وہ جمع کرے گا ان سب کو اپنی طرف ایک ساتھ۔ آیت نمبر 173۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک تو ضرور اللہ پورا پورا دے گا انہیں ان کا اجر، اور وہ مزید بڑھا کر دے گا انہیں اپنے فضل سے۔ اور بے شک جو لوگ توہین محسوس کریں اور تکبر کریں تو وہ عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آیت نمبر 174۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے انسانوں، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف نور مبین۔ آیت نمبر 175۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پھر بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے تھام لے اس کے ساتھ ہو تو ضرور اللہ داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت اور فضل میں، اور وہ ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ آیت نمبر 176۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ اہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا واللہ بکل شیء علیم۔ وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ وہ فتویٰ دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص وفات پا جائے، نہیں ہو اسے کوئی اولاد اور ہو اس کی ایک بہن، تو اس بہن کے لیے آدھا جو چھوڑ جائے مرنے والا، اور وہ بھائی وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس کی بہن کی کوئی اولاد۔ پھر اگر ہو وہ دو بہنیں تو ان دونوں کے لیے 2/3 اس میں سے جو وہ چھوڑا میت نے، اور اگر ہوں بھائی اور بہن زیادہ تو بھائی کے لیے برابر حصہ ہوگا 2 بہنوں کے۔ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ نہ تم بھٹکو، اور ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا۔ شروع بھی نہیں ہو رہا ہے بہت اوکے۔ سورۃ النساء انشاءاللہ آیت نمبر 170۔ اب دیکھیے کہ آگے جو یہ آیت آ رہی ہے اسپیشلی یہ اور اس کے آگے کی کچھ آیتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کی روشنی میں جو یعنی آپ اس چیز کو نوٹس کریں گی کہ یہودی اور نصارہ کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے ویری کلیئرلی،
किस तरीके से देखते हैं इंशाल्लाह। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ मिन रब्बिकुम, ए इंसानों दर हकीकत तुम्हारे पास ये रसूल आ गए हैं। ये से मुराद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के साथ आए हैं। मतलब हक के साथ आए मुराद क्या है? जहां पर भी कुरान में देखिए ये अल्फाज हम पढ़ेंगे, दैट मीन्स कुछ मकसद है उनको भेजने का। अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर उन्हें रसूल बनाकर भेजा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, ये अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे। और वो खुद नहीं अपने आप से नाउज़ुबिल्लाह रसूल बन के आ गए। फिर मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से रसूल बनाकर भेजे गए हैं। तो करे क्या फिर? फ़आमिनु खैरल लकुम, फिर ईमान ले आओ, कहना मान लो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तो ये पूरी इंसानियत को ये दावत दी जा रही है, पूरी इंसानियत को ये मैसेज दिया जा रहा है। ये मतलब किसी एक इंसान से मुखातब नहीं हो रहे अल्लाह सुब्हान ताला, बल्कि ये पूरी इंसानियत से कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अल्लाह ताला बोल रहे मैंने तो तुम्हें कॉमन मैसेज दे दिया, हाँ लेकिन इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि, और अगर तुम इनकार करते हो तो ये मत भूलो फ़इन्ना लिल्लाह, फिर बेशक अल्लाह ही का है जो आसमानों में जो जमीन में है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह सुब्हान ताला जानते और हिकमत वाले हैं। यानी तुम्हें तो ये कहा जा रहा है ईमान ले आओ, और तुम नहीं मानते, नहीं कहना मानते हो, ईमान नहीं लाते, तो इसमें अल्लाह सुब्हान ताला का नाउज़ुबिल्लाह कुछ भी नहीं बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अल्लाह सुब्हान ताला का ही है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए आयत नंबर 171 में जो बताई जा रही है यहाँ पर कि अहले किताब का जो है वो दीन में बिगाड़, अहले किताब के दीन में बिगाड़ किस तरीके से जो है वो शुरू हुआ। ये डेफिनेटली आज पास्ट के मुसलमान की बात बताकर प्रेजेंट के मुसलमान को ये सबक दिया जा रहा है कि तुम अपने दीन में बिगाड़ किस तरीके से पैदा करते हो। देखते हैं चलिए क्या आज का मुसलमान भी इस बुराइयों में फंसा हुआ है। इंशाल्लाह गौर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो अहले किताब से मुखातिब होकर कह रहे हैं, या अहलल किताबी ला ताउलू फी दीनकुम, ए अहले किताब से मुराद यहाँ पर यहूदी और नसारा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अहले किताब हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें ये किताब दी है, हम तक ये किताब पहुंची है। चलिए देखिए अल्लाह सुब्हान ताला मैसेज क्या दे रहे, ला तागलू फी दीनकुम, नंबर 1 अपने दीन में हद से मत बढ़ो। यस, अब देखिए कि यहूदी किस तरीके से दीन में हद से बढ़ गए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को फॉलो नहीं कर सकते थे, अरे करते ही नहीं थे वो लोग। अच्छा, नसरानी जो थे ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर, वो दीन में हद से कैसे बढ़ गए कि नाउज़ बिल्लाह उन्होंने रसूल को ही खुदा बना लिया, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो खुदा बना लिया, उनको रब कहने लगे, नाउज़ बिल्लाह उनको गॉड कहने लगे। एक चीज, दूसरी बात क्या है, ये अल्लाह सुब्हान ताला समझा रहे हैं अपनी किताब के जरिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दीन में बिगाड़ ना पैदा हो तो दीन में हद से मत बढ़ो। आज बहुत अफसोस के साथ कहा जाता है, देखिए कि आज मुसलमान किस कदर दीन में जो बिगाड़ पैदा कर रहा है, दीन से हट के काम करते हैं और उसको दीन का नाम देते हैं, दीन का लिबास पहनाते हैं उसको, जबकि दूर दूर तक हम देखते हैं कि उससे ना अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म का कोई ताल्लुक है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत का ताल्लुक होता है। ठीक है, चलिए नंबर 2 वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, बहुत खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला बोल रहे और नहीं तुम कहो अल्लाह के बारे में या अल्लाह पर सिवाय हक के, सिवाय हक के। क्योंकि ईसाई जो थे देखिए दीन में हद से बढ़े वो, जबकि उन्हें भी यही हुक्म दिया गया था कि तुम हक के सिवा कुछ भी नहीं कहना। चलिए देखते वो हक बात क्या है। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु, और हक क्या है, हक ये है कि दर हकीकत मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल और उनके कलिमा है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान ताला का एक कलिमा है। अब वो कलिमा क्या है, वो बात क्या है, कलिमा का मतलब बात होता है। ओके, तो वो कलिमा क्या है, कुन, कुन का कलिमा। अल्लाह सुब्हान ताला ने उनसे कहा कुन, हो जा, फयकून, फिर वो हो गए। बस
अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको एक मौजज़े के तौर पे पैदा किया, एक दुनियावी सिस्टम से कुछ अलग हट के अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको पैदा किया कि इंसान की पैदाइश के लिए एक मर्द और औरत का होना जरूरी है, उनका मिलना जरूरी है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इन सब से बिल्कुल हटके थी। तो अल्लाह सुब्हान ताला ये बात जो है वो बताना चाहते थे उन लोगों को कि डेफिनेटली इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज पर कुदरत रखते हैं। अरे जो रब यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है तो वो रब सब कुछ कर सकता है। यस डेफिनेटली अल्लाह सुब्हान ताला सब कुछ करने पर कादिर हैं। और हक बात क्या है? अच्छा, अब वो जो कलिमा थे उनके, तो अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि ज़ाहिरी असबाब के बगैर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला ने दुनिया में भेजा। और क्या है बात? अलक़ाहा, वो जो कलिमा था, कुन का कलिमा, डाल दिया उसको, उस बात को, उस कलिमा को किधर? हजरत मरियम और रूहुन मिन्हु, हजरत मरियम की तरफ अल्लाह सुब्हान ताला ने उस कलिमे को डाल दिए। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं और रूह हमने जो है फूकी अपनी तरफ से, ये रूह थी हमारी तरफ से। अब देखिए यहाँ पर बस एक बहुत ही आसान से अल्फाज में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तरफ इशारा किया गया है। अब बहुत ज्यादा इंसान तहकीक में ना जाए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, यानी देखिए बेकार की बातों में पढ़ने से हमें असल चीज ये लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज पर कुदरत रखते हैं। और जिस तरीके से इंसान नॉर्मल यानी कि इंसान की जो भी जरूरियात होती है, जो डिजायर होती है, वही ईसा अलैहिस्सलाम की भी थी। तो फिर जब वो तुम्हारी तरह चलते हैं, फिरते, खाते पीते, तो वो खुदा कैसे हो सकते हैं? अल्लाह सुब्हान ताला की जात ऐसी है कि वो सबको पैदा करता है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो सबको खिलाता है, उसको कोई खिलाता नहीं है। ये तो अल्लाह सुब्हान ताला की जो है वो क्वालिटी है। तो नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को किस वजह से, किस बेस से तुम अल्लाह का बेटा या खुदा कहते हो? अब ठीक है, चलो तुम्हें पता चल गया ना कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के एक कलिमा है, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। तो तुम्हें क्या करना है? ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके तमाम रसूलों पर। बस हमें ये काम करना है, हमें बाल की खाल नहीं निकालनी है, हमें बहुत बेकार की बातों की तहकीक नहीं करनी है। जब इंसान देखिए कि असल को छोड़कर नकल के पीछे जाता है ना, तो यकीन करिए कि फिर उसको कुछ नहीं हाथ लगता है। अब कुछ लोग जो है, जब अल्लाह ने कह दिया कि हाँ जन्नत है, जहन्नम है, कुछ लोग उसको जन्नत को हासिल करने के बजाय उसकी तहकीक में लग जाते हैं। इंशाल्लाह नहीं, पीछे आके गए सूरह आले इमरान के शुरू में ही कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में कुछ जो है वो बिल्कुल मुहक्कम आयत उतारी है और कुछ ऐसी मुशाबे आयतें। तो बस देखिए कि कुछ ऐसी जिस पर अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया कि ये है तो है, बस हमारा ईमान है कि ये अल्लाह की तरफ से है और ये डेफिनेटली सब सही है। और कुछ लोग उसी तहकीक में क्या होगा, कैसे होगा, जन्नत कैसी होगी, ये कैसा हो गया, यानी उसी बेकार बातों में जो है वो सारी जिंदगी निकाल देते, ना कि इसकी कोई तैयारी करते। ठीक है, वला और क्या नहीं करो। यहाँ पर असल में जो बात आप पढ़ रहे ना, ये नसरानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे, उनके अकीदे में बिगाड़ किस कदर थी, उनका अकीदा कैसे बिगड़ा, ये तमाम बातों का यहाँ तज़किरा किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, आयत नंबर 171 ही चल रही है अभी, वला तक़ूलु सलासा, और नहीं तुम कहो तीन, ये मत बोलो कि तीन खुदा है। तीन खुदा कैसे ये लोग बोलते थे नाउज़ बिल्लाह, कि अल्लाह सुब्हान ताला को अल्हम्दुलिल्लाह रब मानते थे, अल्लाह को अल्लाह मानते थे, देन नाउज़ बिल्लाह वो लोग हजरत मरियम को भी पूजते थे और ईसा अलैहिस्सलाम की भी इबादत करते थे। तो इस तरीके से कहते थे कि तीन खुदा है हमारे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला बोले इंतहू खैरल लहुम, बाज आ जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और फिर क्या कहना है, इन्नमा वाहु इलाहु वाहिद, हकीकत अल्लाह अकेला वाहिद माबूद है, वाहिद, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और कैसा है वो, सुब्हानहु अन यकून लहू वलद, पाक है वो, पाक है वो कि वो हो उसकी कोई औलाद। इन तमाम बातों से पाक है कि अल्लाह सुब्हान ताला किसी को अपना बच्चा बना ले, किसी को बेटा बना ले, या किसी को औलाद बना ले। और देखिए ना, डेफिनेटली ना
देखिए औलाद की जरूरत किसको पड़ती है, बच्चे की जरूरत किसको पड़ती है। इंसान सोचता है अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरा सहारा बनेगा, मेरी नस्ल चलेगी, ऐसा वैसा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम ऐबों से पाक है कि वो किसी का बाप हो या उसकी कोई बाप हो, उसका कोई बाप हो, तो इन तमाम चीजों से अल्लाह सुब्हानहू ताला पाक है। अल्लाह सुब्हानहू ताला सब ऐब से पाक है। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो वाहिद है, अकेले हैं। और उसकी शान तो देखो, अरे जिसका जमीन और आसमान सब कुछ जिसका हो तो उसे क्या जरूरत है औलाद की, बिल्कुल भी नहीं। और तुम क्यों बोल रहे लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला। जो आसमानों में जमीन में सब का सब उसी का है और काफी है अल्लाह कारसाज। कुछ लोगों का ये अकीदा है ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दुनिया बना दी, देन अर्श पर चले गए, अल्लाह सुब्हानहू ताला टर्न ऑफ हो गए, अर्श पर गए और दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी है मखसूस कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो है वो वकील बना दिया, वली बना दिया कि जाओ तुम दुनिया का निजाम संभालो। ये कुछ लोगों का अकीदा है। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत मतलब अफसोस की बात है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने चुनिंदा कुछ लोग ऐसे चुने और दुनिया का निजाम, दुनिया का इख्तियार उनके हाथ में दे दिया, पावर उनके हाथ में दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू ताला बोलते नहीं, जो दुनिया बना सकता है उसको चलाने में क्या मुश्किल है। यस, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्या आप देखिए, आप कार चला सकती है, उसको बना नहीं सकती हैं। आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आप उसको बना नहीं सकती हैं। इसी तरीके से दुनिया की कितनी भी चीजें आप ले कि आप उसको आप जो है वो उसको यानी कि चला सकती हैं लेकिन आप बना नहीं सकती। आप मोबाइल चला लेंगे लेकिन आप मोबाइल बना सकती है कि नहीं। तो जो रब दुनिया बना दिया जिस रब ने, तो उसको चलाना क्या मुश्किल है। तो कुछ लोगों का ये अकीदा है, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि कुछ वलियों के हाथ में कुछ नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पावर दे दिया है, किसी को बेटा देने का पावर दे दिया, किसी को बेटी देने का पावर दे दिया, किसी को रिस्क देने का पावर दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए अपने अकीदे को दुरुस्त करिए। ईच एंड एवरीथिंग सब अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में है, किसी और के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर जो एक बात बताई जा रही है यहाँ पर कि आयत नंबर 172 में अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या बता रहे हैं। 172 में अब जो बात हो रही है यहाँ पर कि लयस्तंकिफल मसीहु अन यकूनु अब्दल लिल्लाह वलल मलाइकतुल मुकर्रबून। यस, डेफिनेटली। तुम कैसे बोलते हो जीसस इज गॉड, जीसस इज ग्रेट? नहीं, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं कि हरगिज नहीं इनकार करते हैं मसीह ईसा इब्ने मरियम कि वो है अल्लाह के बंदे। वो उन्होंने तो कभी अपने मुझ से नहीं कहा कि मैं जो है वो अल्लाह का जो है मतलब मैं खुदा हूँ या मुझे पूजो या फिर मेरी इबादत करो। उन्होंने तो कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं। बल्कि वो तो ये कहते हैं और उन्हें इनकार भी नहीं है इस बात से कि वो अल्लाह के बंदे नहीं है करके। बिल्कुल हमेशा उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और मुकर्रब फरिश्ते जो अल्लाह के पास है वो भी इनकार नहीं करते हैं इस चीज से। यस, डेफिनेटली। हाँ, लेकिन सुन लो, वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही, और जो कोई भी वो इनकार करेगा उनकी बंदा होने से या उनकी बंदगी से, उसकी बंदगी से। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ इशारा किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला बोल रहे हैं कि मेरे हुक्म पर जो नहीं चलेगा और वो तकब्बुर करेगा, सो व्हाट फसयह शुरूहुम इलैहि जमीया। तो कोई बात नहीं, फिर जरूर सबको अल्लाह सुब्हानहू ताला जमा करेंगे, सबको अपनी तरफ जमा करने वाले। खौफ आना चाहिए इंसान को। ऐसी बातें अल्लाह के सुब्हानहू ताला के ताल्लुक से कहना जिसका इल्म उसको नहीं है या जिसका हुक्म अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि बंदगी से इनकार करना और तकब्बुर करना क्या है। ये कोई भी मुंह से नहीं कहता है कि नहीं बाबा मैं अल्लाह को नहीं मानता, नाउज़ुबिल्लाह, रसूल को नहीं मानता, नाउज़ुबिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गिरा से गिरा भी मुसलमान होगा तो कोई भी जिसको नॉलेज नहीं भी होगी तो वो कभी भी अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं निकालता, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अमलन देखिए आप किस कदर इनकार करते हैं लोग। मस्जिद में पुकार आती है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, लेकिन क्या फिर उसके बावजूद भी उस पुकार पे लोग जाते हैं? मुसलमान ही घूमते रहते हैं ना। आवाजें आ रही है मस्जिद में, नमाज मौजिन पुकार रहे हैं, वो अल्लाह की अजान की आवाज आ रही, लेकिन फिर भी मस्जिद नहीं जाते। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तकब्बुर। कि
वो देखिए, वो रब जिसने दुनिया बनाई, तुम्हें बनाया, वो सब कुछ दे रहा है, सब कुछ तुम्हें अता कर रहा है, उसके बावजूद भी तुम उसके बुलाने पे नहीं जा रहे, दैट इज तकब्बुर। अच्छा, उसकी बंदगी से इनकार करना, ये क्या होता है पता है आपको? क्या जरूरत है मुझे नमाज पढ़ने की? अरे मुझे थोड़ी कुछ चाहिए, मेरे पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का। तो एक बात बताइए, जो लोग देखिए मतलब के लिए अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो यकीन करिए मतलब पूरा होने पे ना वो छोड़ भी देते हैं अल्लाह सुब्हान ताला को पुकारना। यस, इट्स अ फैक्ट। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा बहुत करीब से, कि कुछ मतलब पड़ा तो पुकारा पुकारा अल्लाह सुब्हान ताला को, देन उसके बाद उनका काम खत्म हुआ तो खत्म, फिर वो पुकारना भी छोड़ देते हैं। ओके, अल्लाह सुब्हान ताला बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी करो दुनिया में, मेरी बंदगी करो नहीं करो, तकब्बुर करना है करो, सबको मैं अपनी तरफ जमा करने वाला हूँ। अब होगा क्या? जमा करने के बाद लोगों के साथ मामला क्या होंगे? तो 173 में अल्लाह सुब्हान ताला क्या बता रहे हैं? फअम्मल लज़ीना आमनु व अमिलु फ़ालिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि। अब जमा हो गए सारे लोग, अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर ऐसे लोग जो ईमान लाए और उसके साथ साथ अमल साले भी करते रहे, फिर पूरा पूरा दे दिया जाएगा उनका अजर। देखिए, यानी कि लोगों के साथ यानी रहते थे, वो सब कुछ सुनते थे, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ वो दीन पर अमल भी करते थे। ऐसा नहीं कि दुनिया में रह के जो वो सिर्फ दुनिया 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 करते थे, नहीं। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और क्या अल्लाह ताला बोल रहे हैं? मजीद अल्लाह सुब्हान ताला यजीद और ज्यादा दूंगा उनको अपने फजल से। देखिए, अब देखिए कि क्या होता है पता है, जब हम अल्लाह अपने आप को महसूस करते हैं ना कि वाकई मैं अल्लाह की बंदी हूँ, जिस इंसान के अंदर देखिए ये फीलिंग आ जाती है ना, तो उसको कोई झिझक नहीं रहती है ना किसी नेकी करने के, बल्कि उसको गुनाह करने में झिझक महसूस होती है। उसको कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती है, फिर वो कहीं भी रहे, उसको नमाज अदा करना है, वो किसी भी महफिल में रहे, कोई उसके बारे में क्या कहता है डज नॉट मैटर, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बनना है अल्लाह का बंदा। जब हम बनते हैं तो हम लोगों को नहीं पूछते, हम लोगों की बंदगी नहीं करते, हम अल्लाह सुब्हान ताला की बंदगी करते हैं। ठीक है, चलिए हो गई बात। दूसरी कैटेगरी, व अम्मल लज़ीना इस्तंकफू वस्तकबरू फयुअज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा। अल्लाह बोल रहे हाँ, लेकिन ऐसे लोग जो इनकार करते हैं और तकब्बुर करते हैं, फिर डेफिनेटली अजाब तो उनको दूंगा मैं, और दर्दनाक अजाब दूंगा। दुआ करिए फौरन, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हु, अल्लाह ऐसे लोगों में हमें शामिल ना करें। और क्या होगा उनके साथ? वला यजिदून लहुम मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और नहीं वो सब पाएंगे उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई भी वली और कोई मददगार। यस, देखिए जरा दुनिया में किस बेस पर वो अल्लाह की अजान पर, अल्लाह की पुकार पर, अल्लाह की बंदगी करने नहीं जाते थे, तकब्बुर करते थे। मुझे क्या जरूरत है, मेरा काम भी बनाने के लिए ना बोले हाजत रवा मुश्किल खुशा मेरे वली मेरे मददगार तो सब मौजूद है ना, मुझे क्या जरूरत है मस्जिद में जाके जो है वो अल्लाह से हेल्प मांगने की। अस्तगफिरुल्लाह, लोग ऐसी भी बातें करते देखिए। अच्छा बोले दुनिया में बड़ा तुमने हाजत रवा मुश्किल कुशा और मददगार और वली बना लिए, आओ तुम मेरे पास, ऐसा अजाब दूंगा ना तुमको कि कोई मेरे अलावा तुम्हारा मददगार नहीं होगा। कितनी प्यारी बात है। देखिए कि जब मुझे बात पता चल गई कि आखिरत में अल्लाह के सिवा मेरा कोई वली कोई मददगार नहीं होगा, तो मैं दुनिया में अल्लाह सुब्हान ताला को क्यों छोड़ूं, क्यों अल्लाह सुब्हान ताला का साथ छोड़ूं, या अल्लाह सुब्हान ताला को मैं वली और मददगार ना बनाऊं। फायदा तो इसी में है मेरा ना, कि जब मैं दुनिया में अल्लाह सुब्हान ताला को अपना वली और मददगार मानूंगी, बनाऊंगी, समझूंगी, तभी तो आखिरत में मुझे चीजें काम आएंगी। ये तो बोलते ना, वो क्या कहते हैं, डबल रोल। दुनिया में कुछ तो आखिरत में थोड़ी। आपको ऐसा है कि आपने जो दुनिया में आपने बुरे बुरे काम किए तो आखिरत में अल्लाह सुब्हान ताला आपका साथ देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चले अब क्या करे इंसान, कैसे जो है इस अजाब से बच सकता है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि अजाब से बचना चाहते हो तो वापस एक बार सुन लो, या अय्युहन नास, आयत नंबर 174 में अल्लाह ताला बता रहे हैं, ए इंसानों, दर हकीकत तुम्हारे पास जो है वाज़ेह दलील आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। देखिए पीछे क्या था, पीछे भी यही बात बताई जा रही थी, बार बार ये बात बताई जा रही है, और सूरत का एंड बहुत खूबसूरत अंदाज में किया जा रहा है। ए इंसानों, तुम्हारे पास वाज़ेह दलील आ गई तुम्हारे रब की तरफ से, और वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ देखे वाज़े रोशन नूर। अब देखिए कुछ लोग इस आयत को ना बहुत ही गलत फोट में लेकर जाते, पता है आपको, नाउज़ुबिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते देखो देखो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये वाज़े नूर है। नहीं, अभी देखिए अगर अल्लाह सुब्हान ताला को यही सेम बात अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो कहनी होती तो फिर एक साथ ही बुरहान और नूरन मुबीना को एक साथ यहाँ पे ऐड कर दिया जाता। ये दो दो दफा बताने की क्या जरूरत है। और देखिए कि रसूल आए, किताब नाजिल की गई थी, किताब किधर से आई नहीं हमारे पास। तो ये इतनी क्लियर बातें मुसलमानों को समझ क्यों नहीं आती है। वो आयत को ऐसा लिंक करते हैं, देखो देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर नूर बोला जा रहा है। ये कितनी गलत बातें लोग फैलाते हैं, नॉलेज होते हुए भी उसके बावजूद भी इतना, मतलब अल्लाह की आयतों को इतना डी वैल्यू किया जाता है कि अल्लाह की आयतें साफ साफ कह रही हैं कि तुम्हारे पास जो है बुरहान आ चुका है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम तक बुरहान आ चुका है, तुम्हारे रब की तरफ से रसूल आ गए हैं, और नाजिल किया हमने तुम्हारी तरफ वाज़े नूर। और नूर क्या है? वो कुरान। यस डेफिनेटली, आप अगर अपनी जिंदगी में नूर चाहती हैं तो अल्लाह के कलाम को अपनी जिंदगी में लाकर देखिए। इसको सिर्फ सवाब के नजर से जो है वो उसको घर में मत रखिए, ताक पर इतना ऊंचाई पे रख दे कि खुद नहीं पहुंच रहे उतारने को, बाबा कंटाल आता भी कौन उतार के पड़ेगा। ऐसे मामला मत करिए अल्लाह की किताब के साथ। अच्छा ठीक है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, आप देखिए आगे, कौन लोग हैं जो वाकई इस नूर से फायदा उठाते हैं। आपके पास आ गया, मेरे पास आ गया, हाँ, लेकिन आयत नंबर 175 में अल्लाह ताला बता रहे हैं फअम्मल लज़ीना, जो है वो लोग जो ईमान लाए, नंबर 1 बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाए, वातसमू बिही, और अल्लाह को मजबूती से थाम लिया। अल्लाह को कैसे थामेगा इंसान मजबूती से? अल्लाह के जो है वो उसके अहकामात को, अल्लाह के दीन को जब हम मजबूती से थाम लेते हैं, दैट मीन्स कि प्रॉपरली उस पर अमल करने लगते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या वादा किया है? फसयुदखिलुहुम फी रहमतिहि मिनहु व फज़लिहि, फिर जल्द वो दाखिल कर देगा उनको रहमत में अपनी तरफ से और फजल भी। और क्या नियामत मिलेगी? वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और वो रहनुमाई करेगा, गाइड करेगा, वो तुम्हें हिदायत देगा अपनी तरफ सीधे रास्ते की। कितनी खूबसूरत बातें देखिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाना है तो उससे पहले तुम्हें ईमान के साथ अल्लाह के दीन को भी मजबूती से थामना पड़ेगा। और आज के दौर में मैं ये कहूँ तो शायद बात गलत नहीं होगी, आज मुआशरा, ये सोसाइटी जो दीन बनाकर हमारे सामने पेश कर रही है, अगर आप उससे बचना चाहती हैं तो करने के 2-3 आपको ये काम करने पड़ेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आप अपने आप को अल्लाह की रहमत में दाखिल कर लें तो फिर ठीक है, अल्लाह की रहमत में जो दाखिल होना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? ईमान के साथ साथ अल्लाह के दिन को मजबूती से थामना पड़ेगा। चलिए इंशाल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 176, लास्ट आयत। जैसे ही शुरुआत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की थी, विरासत की बात से शुरुआत हुई थी, अहकामात से शुरुआत, हुकूक की बातें हुई थी, सेम एंडिंग इख्तिताम भर उसी पर हो रहा है। विरासत का एक मसला जो वहां रह गया था वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं बात क्या है। यस्तफ्तूनक, वो सब फतवा पूछते हैं आपसे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे आकर फतवा पूछ रहे हैं, मसला पूछ रहे हैं। ठीक है, आप कह दीजिए अल्लाह वो हुक्म देता है तुमको कलाला के बारे में। कलाला किसको कहा जाता है? बस बहुत सिंपल सी बात याद रखिए, जिसके पेरेंट्स भी नहीं है, यानी उसके ऊपर का भी कोई नहीं है और उसके नीचे का बच्चे भी नहीं है, हाँ लेकिन भाई बहन है उसके, ठीक है, भाई बहन है तो वो कलाला। अगर बच्चे नहीं है और अगर पेरेंट्स नहीं है तो ऐसे शख्स को एक टाइटल दिया गया, दैट इज कलाला। ओके, अब आगे क्या बताया जा रहा है? अगर वो मर्द, एक आदमी कलाला है, वो मर जाए, लैसा लहू वलद, ध्यान से सुनिए, और उसको कोई बच्चे नहीं है, वलहु उख्तुन, हाँ लेकिन एक बहन है, उसको एक बहन है, अगर फलहा निस्फु मा तरक, फिर उसकी बहन को आधी प्रॉपर्टी मिलेगी जो उसका भाई मर गया छोड़ गया। ओके ठीक है, अगर एक बहन है तो भाई की प्रॉपर्टी में से आधा प्रॉपर्टी उसकी बहन को मिलेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। वहुआ यरिसुहा इल्लम यकुल लहू वलद, सेम केस अपोजिट भी हो सकता है। कैसे कि अगर समझो एक
लड़की एक औरत कोई कलाला है, उसके बच्चे नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उसका अगर एक भाई है तो बहन की पूरी प्रॉपर्टी उसके भाई को मिलेगी। देखिए पिछली आयत अगर आपको याद आ रही है ना कि जैसे कि वहां पे भी था, अगर एक लौती बेटी है तो बाप की प्रॉपर्टी में से उसको आधा मिलेगा। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा ऐसा मैच करके याद रख सकते हैं इसको इंशाल्लाह। ओके ना आगे, अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं फ़इन कानत स्नतैनी फलहुमा सुलासानी मिम्मा तरक। अच्छा, अब एक बहन नहीं है, दो बहनें हैं। ओके, दो बहनें हैं तो ओके ठीक है, दोनों को जो है वो प्रॉपर्टी में से 2/3 दिया जाएगा। ओके, 2/3 हिस्सा जो है वो दिया जाएगा, किसमें से? जो मरने वाला छोड़ गया है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे भाई बहन है, एक बहन नहीं है, दो बहन नहीं है, बल्कि उसके और भी भाई बहन। वइन कानु इख्वतन रिजालन व निसा। अगर बहुत सारे भाई बहन हैं तो वही रूल फॉलो करना है, वही बात होगी जो औलाद की बात होती है। फाली ज़कर मिस्ल हज़िन उस उन्सयैनी। फिर अगर दो से यानी बहुत ज्यादा भाई बहन हैं तो भाई के लिए हिस्सा होगा जितना दो बहनों का हिस्सा होता है। दो बहन को जितना मिल रहा है उतना एक भाई को मिलेगा, ऐसा ठीक है। यानी कि भाई को जो है वो डबल मिलेगा और बहनों को उसका आधा हिस्सा मिलेगा। चलिए ठीक है। अब आप बोलोगे क्या चक्कर आ रही है, मुझे तो ये आयतें सुन के ऐसा ऐसा, क्या जरूरत है, ये सब सुन के क्या फायदा है? तो सुनिए जरा, इख्तिताम सुनिए। आप बोलोगे कहाँ हमारी मैथमेटिक्स में फंसा दिया अल्लाह सुब्हान ताला ने। अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं युबय्यिनुल्लाहु लकुम। जवाब सुन लो, चकराओ मत। ये तुम्हें इसलिए बयान किया जा रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें इसलिए बयान कर रहे हैं आं तबिल्लू, कि तुम भटक न जाओ, कहीं तुम गलती ना कर लो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, ये मत भूलो अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज का इल्म रखते हैं। यस डेफिनेटली, हमारा ईमान इस पर होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह निसा में जो भी मैसेज दिया है वो अपने इल्म के बेस पे दिया। और ये आयत हम पीछे पढ़ भी चुके ना कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह सुब्हान ताला की नॉलेज से है। और देखिए कि आज उम्मत भटकी हुई है ना, बस डेफिनेटली कितने मामलात हमको सूरह निसा में मिले। ये भी मामलात की बात है ना, ये भी मामला होता है प्रॉपर्टी का। और अल्लाह सुब्हान ताला तो बोल रहे हैं कि आज जो उम्मत भटकी है ना, देखिए क्यों? क्योंकि उसने इस किताब को बरकत का जरिया समझा। इस किताब से बरकत हो जाएगी, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, मगर इसको समझने की कोशिश नहीं की कभी। दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हान ताला अपनी किताब को समझकर उस पे इल्म जो है वो इल्म लेने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिर दावान यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे, आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से
اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سچ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔